Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Ruba Shahid, and today my presentation topic is about the oxides of nitrogen and sulfur in troposphere. Oxides of nitrogen, also known as NOx, and oxides of sulfur, also known as SOx. Now let's move towards the contents. First of all, we will look about what is tropospheric pollution, then oxides of nitrogen and sulfur and their sources, then what are the role of NOx in tropospheric ozone formation and SOx and its sources, then what is homogeneous gases mechanism, and at the end, what is acid rain, NOx and SOx effects on the human health, and what are the controlling methods to control these oxides of nitrogen and sulfur that are usually creating the pollution. Now, what is tropospheric pollution? Before I'm gonna present you about the oxides of nitrogen sulfur, let me tell you one thing in detail that what is troposphere and what is tropospheric pollution. Actually, हमारा जो atmosphere है उसकी different layers होती हैं. So, what is atmosphere? Actually, atmosphere is a layer of the gases around the planet Earth. There are different layers of the gases that is spread. There are different layers of atmosphere, which includes the troposphere, stratosphere, mesosphere, and thermosphere. लेकिन जो हमारा troposphere है, it is the lowest layer of the Earth's atmosphere, and is really derived from the Greek word tropos, meaning turn toward, earth change, and sphere means the earth. You people will be very astonished to know that all the weather conditions usually takes place in the troposphere, that is the lowest layer of the earth atmosphere. आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो कि this is the troposphere layer. ठीक है, ये हमारी atmosphere की layer है, and this is the stratosphere layer. Now, what is the tropospheric pollution and how it is caused? Actually, the presence of any unwanted substances in the atmosphere is actually called a pollution. And when I'm talking about the tropospheric pollution, it means the presence of the unwanted substances in the lowest layer. How many types are pollutants? There are two types of pollutants, gaseous air pollutants and particulate pollutants. Gaseous air pollutants कौन से pollutants होते हैं? These are the pollutants that are usually present in the gaseous form in our atmosphere, which includes the sulfur and nitrogen, hydrogen sulfide, ozone, oxides of carbon, etc. And when we are talking about the particulate pollutants are usually present in the liquid or solid form, and they are present in the suspended form in our atmosphere. These include the smoke, dust, mist. Mist क्या है? It's actually a water droplets that are suspended in our atmosphere. Smoke, it is the intense form of the air pollution, and fumes, etc. यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास एक ट्रोपोस्फेयर की लेयर बनी हुई है. This is the free troposphere. Free troposphere, it's called it's actually the weather layer, जहाँ पे सारी की सारी वेदरिंग जो है हो रही होती है. इसके अलावा बाउंड्री लेयर इज एक्चुअली द लोएस्ट लेयर ऑफ द ट्रोपोस्फेयर दैट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द अर्थ्स एटमॉस्फेयर. आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जब मैंने आपको कहा कि ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन होती है, तो ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन किस वजह से होती है? डिफरेंट तरह की जो है हमारे पास नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस होती है, डिफरेंट ऑक्साइड्स, डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स की, जिसमें हमारे पास डिफरेंट तरह जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारे के सारे इस स्फीयर के अंदर जाते हैं, जिसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, और डिफरेंट तरह की पोल्यूशन जो है वो कॉज करते हैं. अब आप लोग सोचते होंगे कि ओजोन, हाउ इट इज पॉसिबल दैट ओजोन इज द एयर पोल्यूटेंट? बिकॉज हम हमेशा से ये पढ़ते आ रहे हैं कि ओजोन इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन हेल्थ, बिकॉज द ओजोन इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर एंड इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. बट यहाँ पे ओजोन जो है वो एयर पोल्यूटेंट क्यों कहा गया? आई विल डिस्क्राइब यू इन द इनकमिंग स्लाइड्स दैट व्हाई आई एम सेइंग दैट ओजोन इज अ एयर पोल्यूटेंट. अब यहाँ पे देख सकते हो कि ओजोन लेयर है, दिस इज अ गुड लेयर, क्योंकि हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचा रही है. लेकिन यू पीपल कैन सी हियर इट आल्सो मेंशन दैट बैड ओजोन. अब बैड ओजोन क्या है? This will elaborate in the incoming slides. Now, let's move towards the main topics, nitrogen oxides and sulfur oxides. सबसे पहले नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की बात कर लेते हैं. नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, any kind of the oxides that are very harmful to the human health are the pollutants. And when I'm talking about the nitrogen oxides, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे नाइट्रोजन की जो नाइट्रोजन की इन्वॉल्वमेंट मौजूद है. ठीक है, कोई भी केमिकल कंपाउंड्स जो कि हवा में जाके ह्यूमंस के लिए या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल साबित हों, उनको हम लोग कहेंगे कि वो एयर पोल्यूटेंट्स हैं. एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इट डजंट मीन दैट नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर ओनली a single compound, only a single chemical. It's actually
a group of the seven compounds. NOx represents the family of the seven compounds है. अब वो कौन से seven compounds है, this will elaborate in the third slide. अब देखें, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ईपीए यहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के लिए यूज किया जा रहा है. अब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में से भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को एज अ सुरोगेट यूज किया. व्हाट इज सुरोगेट? सुरोगेट इज एक्चुअली अ मार्कर. हम लोग किसी भी चीज के लिए जब हम रिप्रेजेंटेटिव कोई चीज यूज करते हैं तो हम कहते हैं कि दिस इज अ सुरोगेट. तो जो ईपी है, इसने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को एज अ सुरोगेट यूज किया फॉर द फैमिली ऑफ द नॉक्स. व्हाई दे चूज द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? देयर आर टू रीजंस बिहाइंड इट. फर्स्ट रीजन कि जितने भी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज होती है, फॉर एग्जांपल वी आर द ह्यूमंस होने की वजह से हम लोगों ने क्या किया, हमें चाहिए टेक्नोलॉजी. हमने डिफरेंट तरह के कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शंस वगैरह की, जिसकी वजह से डिफरेंट तरह के ऑक्साइड्स जो थे वो एटमॉस्फेयर हमारे में एंटर होना स्टार्ट हो गए. अब जब एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हुई तो उनमें जो प्रिवेलेंट फॉर्म आती है दैट इज द नॉक्स. नॉक्स, और उनमें भी प्रिवेलेंट फॉर्म कौन सी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. यानी कि जब भी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज होंगी, नाइट्रिक ऑक्साइड्स जो है, नॉक्स जो है, वो हवा के अंदर, वो एटमॉस्फेयर के अंदर जाएंगे. उनमें जो प्रीडोमिनेंट, जो बिल्कुल प्रिवेलेंट फॉर्म होगी, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी. एंड सेकंड वन रीजन इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड itself is a air pollutant. ये तो हमें पता है, but it can also react with the other gases to form the ozone and the acid rain. अब एक दो रीजन हमें पता चल रही है कि why वो use the nitrogen dioxide as a surrogate. नाउ, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो होते हैं ये हार्मफुल क्यों है? एक्चुअली दे प्रोड्यूसेस द इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस गैसेस. अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैसेस क्या है? डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैसेस जिसमें मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आती है, जो कि डायरेक्टली आपके एटमॉस्फेयर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही हैं. इसके अलावा जो इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इन डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैसेस डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस करती हैं, और एज अ रिजल्ट हमारे पास इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस गैसेस भी बनती हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये ओजोन बना रहे हैं व्हाइल फोटोकेमिकल रिएक्शन इन द एटमॉस्फेयर. वी नो फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर दो दैट आर यूजुअली ड्रिवन बाय द लाइट. सो हम लोग बता सकते हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स में से जो इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस बना रहे हैं दैट इज द ओजोन दैट acts as a air pollutant. Now, what is SOx? SOx are they are the combination are of sulfur and oxygen. You can say these are the compounds of the sulfur and oxygen. अब यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो कि डिफरेंट तरह के आपको ऑक्साइड्स नजर आ रहे हैं, जिसमें लोअर सल्फर ऑक्साइड्स है, जिसमें SNO S7O2 है, या S6O2 है, सल्फर मोनोऑक्साइड है, मोनोसल्फर मोनोऑक्साइड इस डाइमर है, डाइसल्फर डाइऑक्साइड एंड सो ऑन. These are the introduction of the nitrogen oxides and the sulfur oxides. Now, what are the oxides that are usually present in the troposphere? क्योंकि हमारा मेन टॉपिक जो प्रेजेंटेशन का है दैट इज द ऑक्साइड्स जो कि प्रेजेंट होते हैं ट्रोपोस्फेयर में. अब आप लोगों ने स्टूडेंट्स क्या करना है कि टेबल जो है प्रॉपरली इसको देखना है फॉर द थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. बट here I mentioned only two oxides of nitrogen that plays a very important role in the troposphere, and that two nitrogen oxides are a nitric oxide NO, this one, nitric oxide, and the other one is nitrogen dioxide, this one, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ये पूरे का पूरा टेबल जिसमें आपको नेम बताए गए हैं, नाइट्रोजन वैलेंसीज के बारे में बताया गया है और प्रॉपर्टीज में बताया गया है. आपका जो मेन कंसर्न है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है NO2, जो कि रेड ब्राउन कलर की गैस होती है, और दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड है जो कि एक कलरलेस गैस है. ठीक है, अब बात करते हैं कि व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट एंड व्हाट दे प्ले देयर रोल इन द ट्रोपोस्फेयर. द मेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. एक्चुअली जितनी भी इमिशन हो रही होती है ड्यूरिंग द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी या नेचुरल रिसोर्सेज से, जो इमिशन सबसे पहले जो प्राइमरीली उसमें से इमिट होता है वो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है. डोंट बी कंफ्यूज विद नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के. अभी तो आपने कहा था कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यूज होती है सुरोगेट मार्कर के तौर पे, बट पीपल मैंने आपको यहाँ पे ये भी बता दिया था कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज अ प्रिवेलेंट फॉर्म. ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रिवेलेंट फॉर्म होगी, लेकिन जो प्राइमरीली हमारे पास आएगी कंबस्शन के थ्रू वो नाइट्रिक ऑक्साइड होगी. नो, अ इक्वेशन दैट इज नोन एज द ज़ेल्डोविक इक्वेशन, इसको हम लोग यूज करते हैं
ये डिटरमाइन करने के लिए कि नॉक्स फॉर्मेशन कितनी हो रही है। फॉर अ नॉक्स फॉर्मेशन इसको जेल्डोविक इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं। इट्स एक्चुअली प्रपोज्ड बाय अ रशियन फिजिसिस्ट जिसका नाम था याकov ब्रोसिजोविच जेल्डोविच। 1946 के अंदर ये इक्वेशन प्रपोज की गई। इसमें बताया क्या गया कि हाउ द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन इज अकर्ड एंड हाउ द नॉक्स फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड। यू कैन से कि किस तरह से हम लोग नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन करेंगे और एज अ रिजल्ट हमारे पास नॉक्स बनेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास नाइट्रोजन है और जब हम लोगों ने ऑक्सीडेशन करवाई इसकी तो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि एन और ओ जो है वो मिल गए। एन और ओ ने आपस में रिएक्शन किया और हमारे पास नाइट्रोजन एक अलग हो गया। इसके अलावा फर्दर अगर हम लोग रिएक्शन करवाना चाहे दिस नाइट्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ द मोलेकुलर ऑक्सीजन ये बनाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन। नाउ हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड के सोर्सेज कहाँ क्या है, कहाँ से आ रहा है? देयर आर मैनी सोर्सेज। यहाँ पे बताया गया है कि सॉइल एंड लाइटनिंग, क्योंकि ये बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है कि लाइटनिंग और सॉइल में भी नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है। सॉइल में कैसे वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग द नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस दे प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द नाइट्रिक ऑक्साइड एंड मोर ओवर ड्यूरिंग द लाइटनिंग प्रोसेस बाय द इलेक्ट्रिक स्पार्क by the action of the electric spark nitrogen and oxygen are combined together and they form the nerves। ये तो हो गए कि सॉइल और लाइटनिंग यानी कि ये तो नेचुरल प्रोसेस से नाइट्रिक ऑक्साइड आ रहा है। लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत बड़ी रीजन है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है नाइट्रिक ऑक्साइड के रिलीज में। मोर ओवर बायोजेनिक सोर्सेज दे आर thought to account for less than 10% total nitric oxide emission। यानी कि biogenic sources these are the natural sources, the emission from the natural sources is known as the biogenic sources। तो वहां से कितनी एमिशन हो रही है 10%। मोर ओवर यू पीपल विल बी वेरी एस्टोनिश्ड नाउ कि नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर भी प्रोड्यूस हो रहा है। हमारा सेरेब्रल वास्कुलेचर, हमारी नर्व्स एंडिंग्स, हमारे ब्लड वेसल्स ये नर्व नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रही है। नाउ द क्वेश्चन रेजेस कि नाइट्रिक ऑक्साइड अगर हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है सो व्हाई इट इज एयर प्लूटेंट, व्हाई इट इज हार्मफुल फॉर द ह्यूमन हेल्थ। यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हमारी बॉडी के अंदर ये एज अ वेजोडाइलेटर तो प्रोड्यूस होता है। हमारी बॉडी में बीपी को लो करता है, वेजोडाइलेट करता है हमारे ब्लड वेसल्स को। लेकिन एक माइन्यूट अमाउंट में ये प्रेजेंट होता है क्योंकि वहां पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसेस जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है फ्रॉम द अमाइनो एसिड एल एस्पाराजिन अमीनो एसिड से। लेकिन वो हमारी बॉडी की नीड्स के लिहाज से नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। इट इज अ वेरी अपडेटिंग नॉलेज एंड इट इज अ वेरी न्यू नॉलेज एंड हाई ओ और मुझे आई होप दिस नॉलेज इज आल्सो अ न्यू फॉर यू पीपल कि नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वेरी माइन्यूट अमाउंट में हमारी बॉडी की नीड्स को पूरा करने के लिए। व्हाट हैपेंड अगर इसकी अमाउंट एक्सेस में चली जाती है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि डिफरेंट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो इससे क्या होगा, इसके इफेक्ट सेम हो जाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड से। यानी कि जब एक्सेस हो जाएगी नाइट्रिक ऑक्साइड की, यू आर प्रेजेंट इन एन एनवायरनमेंट वेयर देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द नाइट्रिक ऑक्साइड, सो you will be more at a risk of you are more at a risk of becoming you are more at a risk of टेकिंग अ डिजीज। आप कोई भी डिजीज जो है वो बड़ी जल्दी से उसको ले सकते हो, आपका इम्यून सिस्टम बहुत जल्दी से वीक हो सकता है। ठीक है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये इसी तरह इसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में होती है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर और वहां पे जाकर अटैच हो जाता है, इसी तरह नाइट्रिक ऑक्साइड भी करता है। लेकिन इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, दैट्स व्हाई इसके जो इफेक्ट्स हैं वो थोड़े से लेस हजार्डस है देन कार्बन मोनोऑक्साइड के। इसके अलावा इतना रियल थ्रेट जो है वो नहीं पोस्ट कर रही होती। देन एक्सेप्ट टू इन्फेंट्स आर वेरी सेंसिटिव इंडिविजुअल, अगर कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि बहुत सेंसिटिव है इससे या इन्फेंट उनमें चांसेस ज्यादा होते हैं। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ नॉक्स एंड नाइट्रोजन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन ट्रोपोस्फेरिक ओजोन फॉर्मेशन। हमारा मेन तो यही था ना कि हम लोगों ने ओजोन फॉर्मेशन की बात की, जो मैंने वेरी फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था कि जो ओजोन है ये डिपेंड ऑन द लोकेशन, डिपेंड अपॉन द स्फीयर वेदर इट इज हार्मफुल फॉर द ह्यूमन हेल्थ और वेदर इट इज बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन हेल्थ। तो जो ओजोन है याद रखना है आपने कि जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होती है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है फॉर द ह्यूमन हेल्थ। ओजोन जो होती है इट इज अ
present trace gas is actually a trace gas or troposphere, और ये सिर्फ और सिर्फ 20 to 30 parts per billion बाय वॉल्यूम जो है प्रेजेंट होती है। जबकि अगर हम लोग अर्बन एरियाज पे चले जाएंगे जो कि बहुत पोल्यूटेड एरियाज हैं, तो वहां पे इसकी जो रेंज है वो 100 ppb तक चली जाती है। अब हमारे पास जो है ट्रोपोस्फेयर के अंदर एक्चुअली जब हम लोग फोटोलाइसिस करवाते होते हैं अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, तो दिस इज द मेन रूट, दिस इज द नाउन रूट फॉर द ओजोन फॉर्मेशन। मैं आपको इसके रिएक्शंस के बारे में पढ़ूंगी कि हमारा अल्टीमेट प्रोसेस क्या है, हमने हमारा अल्टीमेट रिजल्ट क्या है कि हमने ओजोन बनानी है कहाँ पे, ट्रोपोस्फेयर में। तो मैं बिफोर वेस्टिंग माय टाइम कि मैं आपको ये सारा टेक्स्ट पहले रीड करके बताऊं, मैं आपको रिएक्शंस के थ्रू समझाऊंगी। टेक्स्ट भी वैसे पढ़ेंगे तो एज इट इज टेक्स्ट होगा। सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड है हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टार्ट करवानी है विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल। जब हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल रिएक्ट करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो एज अ रिजल्ट एक रेडिकल अडक्ट बनेगा। रेडिकल अडक्ट, अडक्ट एक्चुअली बनता कैसे है कि हमारे पास ना एडिशन ऑफ डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स की एडिशन होती है और एक ऐसा रिजल्टेंट प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है जिसमें तमाम कंपोनेंट्स जो है प्रेजेंट होते हैं। अब हमारे पास जो है परऑक्सी रेडिकल जो है वो बन की चुका है। जब हम लोगों ने परऑक्सी रेडिकल जो है हमारे पास देखे, रेडिकल HOCO जो है बन चुका है। अब ये जो अडक्ट है, जब हम लोग इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एज अ रिजल्ट हमारे पास पेरोक्सी रेडिकल HOO2 बन जाएगा। इसको दोबारा से देखते हैं कि हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड था, जब इसकी ऑक्सीडेशन करवाई हमारे पास हाइड्रोक्सी रेडिकल के साथ, तो हमारे पास एक अडक्ट बना। इट इज हाईली अनस्टेबल, ये स्टेबल नहीं है, ये अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास पेरोक्सी रेडिकल बन जाएगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। अब ये पेरोक्सी रेडिकल जो है ये नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके हमारे पास हाइड्रोक्सिल रेडिकल फ्री, हमारे पास हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल बनाएगा, साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देगा। अब जिस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि विद द प्रेजेंस ऑफ द यूवी लाइट ये जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड और एक एटॉमिक ऑक्सीजन, दिस इज द एटॉमिक एलिमेंटल ऑक्सीजन, डोंट बी कंफ्यूज कि ये क्या है, दिस इज द एटॉमिक एलिमेंटल ऑक्सीजन, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अभी जो हमारे पास एलिमेंटल या एटॉमिक ऑक्सीजन है, ये क्या करेगी, मोलेकुलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और आपको पता है कि दिस वन और ये दो मिलके एक ओजोन का मॉलिक्यूल जो है वो बना देंगे। नाउ अगर हम लोग नेट रिएक्शन की बात करें, इन द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड वो मोलेकुलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, तो यहाँ पे आपको पता है कि एक ऑक्सीजन इसके पास चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी और हमारे पास एक ओजोन का मॉलिक्यूल पीछे बच जाएगा। बट व्हाट हैपेंड इफ देयर इज एन एक्युमुलेशन ऑफ द ओजोन मॉलिक्यूल, ये बात स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है कि ट्रोपोस्फेयर में देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द ओजोन फॉर्मेशन एंड द नॉक्स फॉर्मेशन। जितनी ज्यादा जो है वो नॉक्स फॉर्मेशन बन रही है और जो ओजोन बन रही है, इन दोनों में एक इक्विलिब्रियम है। एक्चुअली होता क्या है, मैकेनिज्म क्या है कि जो ओजोन होती है ये डिस्ट्रॉय कौन करता है, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड डिस्ट्रॉय करता है, दैट इज द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पे क्या होगा, जितनी भी ओजोन बनती है वो नाइट्रिक ऑक्साइड को डिस्ट्रॉय करता है। इस तरह हमारे पास ओजोन जो है डिफरेंट तरह के रिएक्शन से जो फोटोकेमिकल इक्विलिब्रियम में रहती है ट्रोपोस्फेयर के अंदर। लेकिन व्हाट हैपेंड कि अगर ओजोन कैसे एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी, हमने पढ़ा कि ओजोन जो एक्युमुलेट नहीं होती कैसे, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड आता है वो उसको ब्रेक डाउन करता है ओजोन को और फिर से दोबारा से ये प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन ओजोन की एक्युमुलेशन होना स्टार्ट कब होती है, एक्चुअली जो हमारे पास जो है पर ऑक्सी रेडिकल्स जो है वो आते हैं या हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल्स आते हैं, तो हमारे पास जो नाइट्रोजन, यहाँ पे अगर हम लोग प्रॉक्सी रेडिकल्स की बात करें, तो ये जो रेडिकल्स होते हैं इनकी प्रेसेस में जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये ज्यादा से ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है। इसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि ओजोन को जो है वो डिस्ट्रक्ट कर सके, उसकी डिस्ट्रक्शन कर सके। जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नॉक्स, यहाँ पे आप नाइट्रिक ऑक्साइड भी ले सकते हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी ले सकते हो, क्योंकि वही रिएक्शंस होंगे और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है ना डिफरेंट तरह के नॉक्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब क्योंकि वो जो हमारे पास नॉक्स थे वो डिग्रेडेशन के अंदर हेल्प कर रहे थे, अब वही इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरोक्सी रेडिकल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे, तो जिसकी वो दोबारा से जो है ना ओजोन की डिस्ट्रक्शन नहीं कर रहे, एज अ रिजल्ट जो है ना ओजोन मॉलिक्यूल जो है वो भी जो है ट्रोपोस्फेयर के अंदर जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से देयर इज एन एक्युमुलेशन ऑफ द ओजोन इन द ट्रोपोस्फेयर। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हाई लेवल ऑफ नॉक्स एंड टुगेदर विद वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड सफिशिएंट एलिमिनेशन दे लीड टू द फोटोकेमिकल स्मोक। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया है कि ओजोन मॉलिक्यूल कैसे एक्युमुलेट होती है। एक्चुअली नॉक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डिग्रेडेशन ऑफ द ओजोन, बट समटाइम्स ड्यू टू सम इश्यूज फॉर ऑक्सी रेडिकल्स की वजह से जो है नॉक्स जो है
वो रिफॉर्म होना स्टार्ट कर हो जाते हैं. दे डू नॉट टेक पार्ट इन द डिग्रेडेशन ऑफ द ओजोन मॉलिक्यूल. दैट्स व्हाई देयर इज एन एक्युमुलेशन ऑफ द ओजोन मॉलिक्यूल इन द ट्रोपोस्फियर. नाउ कि हमारे पास सोर्सेज क्या है नॉक्स के. नॉक्स कहाँ कहाँ से आ सकते हैं. तो नॉक्स ऑक्साइड्स एक्चुअली दे आर वेरी पॉइजनस, दे आर वेरी रिएक्टिव गैसेज. इनके डिफरेंट तरह के सोर्सेज हैं. फॉर एग्जांपल दे आर इमिटेड बाय द ऑटोमोबाइल ट्रक्स एंड वेरियस नॉन रोड व्हीकल्स. नॉन रोड व्हीकल्स दीज आर व्हीकल्स दैट आर नॉट परमिटेड टू रन ऑन द रोड्स, जो कि यूजुअली कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बोर्ड्स में यूज की जाती है, इनको हम लोग नॉन रोड व्हीकल्स कहते हैं. इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल सोर्सेज हैं जिसमें हमारे पास पावर प्लांट्स और इंडस्ट्रियल ब्रॉयलर्स आते हैं, उनमें से भी जो नॉक्स की काफी इमिशन होती है. इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि नेचुरल सोर्सेज के अंदर लाइटनिंग और माइक्रोबियल प्रोसेसेस जो सॉइल के अंदर होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं. यू पीपल विल बी वेरी एस्टोनिश्ड टू नो कि यूरोप के अंदर अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो मैन मेड एमिशन यानी कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एमिशन ऑफ द नॉक्स इन यूरोप. अब देखिए कि यूके जो है वो 2.2 मिलियन टन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हर साल जो है वो इमिट कर रहा है थ्रू द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज. जबकि इसमें 1 क्वार्टर जो होता है वो पावर स्टेशन, हाफ जो 1 हाफ है वो मोटर व्हीकल से, और बाकी जो है इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक कंबस्शन प्रोसेस से आता है. एंड देयर इज अ वेरी अपडेटिंग नॉलेज फॉर यू पीपल के पाकिस्तान के अंदर यानी कि जो सीएनजी है, पाकिस्तान इसको यूज करने में इसका रेट बहुत ज्यादा है. एंड पाकिस्तान इज द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द सीएनजी इन द वर्ल्ड, व्हिच अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट टू इंक्रीजिंग नॉक्स इमिशन. यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाहूंगी कि देखिए ट्रांसपोर्टेशन में नॉक्स की इमिशन 54% है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में 5% है, अदर कंबस्टन प्रोसेस में 3% है, मिसलेसिनियस यानी कि इसके अलावा जो है उसमें 2% है, और इंडस्ट्रियल कंबस्शन में 14% है. इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज की आप बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए कोल 19%, नेचुरल गैसेस वगैरह ये सब कुछ उन्होंने इमिशन के बारे में बताया हुआ है. नो सॉक्स ऑन देयर सोर्सेज. अब हम नए टॉपिक की तरफ आए हैं कि सल्फर ऑक्साइड्स क्या होते हैं, उनके सोर्सेज क्या होते हैं. सल्फर ऑक्साइड्स और सल्फर डाइऑक्साइड, एयरबोर्न सल्फेट, दीज आर एक्चुअली द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड दीज आर वेरी शॉर्ट लिव्ड यानी कि इनकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है ट्रोपोस्फियर के अंदर. और ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं. एक्चुअली दे आर ड्रामेटिकली देयर कंसंट्रेशन इज ड्रामेटिकली चेंजेस विद द फॉसिल फ्यूल कंबस्टन. अगर फॉसिल फ्यूल कंबस्टन ज्यादा है तो इनकी ट्रोपोस्फियर में कंसंट्रेशन भी ज्यादा है. अगर आप फॉसिल फ्यूल कंबस्टन कम कर रहे हो तो सॉक्स भी कम होंगे. इसके अलावा आप देख सकते हो कि टीएसपी टोटल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर एंड पीएम पार्टिकुलेट मैटर 10 जो है, एक्चुअली PM10 क्या है. दिस इज अ पार्टिकुलेट मैटर 10. दीज आर आल्सो द क्वेस इनहेलेबल पार्टिकल्स जो कि इजीली जो है ना वो एंटर हो जाते हैं हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, हमारे जो है इंटरनल सिस्टम के अंदर. अब देखिए कि जो डेली पार्टिकुलेट मैटर है हमारी जितनी मेगा सिटीज हैं लाइक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, रावलपिंडी, इसमें आप देख सकते हो कि किस तरह से जो है डेली पार्टिकुलेट मैटर और नॉक्स कंसंट्रेशन कैसी है. और अकॉर्डिंग टू द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिमिट्स के लिहाज से यहाँ पे इन सिटीज के अंदर नॉक्स की कंसंट्रेशन ट्वाइस है जो कि WHO ने प्रिस्क्राइब की थी, जो कि WHO ने बताया था कि इतनी एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिहाज से जो है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो एक्चुअली नॉक्स. ये क्या है, ये एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है वो डिस्क्राइब किए गए हैं बाय द एजेंसी, बाय द WHO, दैट इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन इन सिटीज के अंदर इनकी कंसंट्रेशन इज ट्वाइस देन द डिस्क्राइब वैल्यूज. अब क्या होता है कि अगर जो सल्फर डाइऑक्साइड में अबंडेंस में कुछ चेंजेस आ रही हैं, तो अगर हम लोग अपने कॉमन सेंस के लिहाज से बात करें तो ऑब्वियसली किसके ऊपर इफेक्ट जाएगा, एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री के ऊपर. क्योंकि एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री के बारे जो हम लोग जितने भी ऑक्साइड्स पढ़ते हैं, जितने भी पोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, दे हैव डायरेक्टली कोरिलेटेड विद एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री. एंड ऑन द रेडिएशन फील्ड यानी कि एक ऐसा एरिया दैट इज ट्रांसफर्स्ड विद द रेडिएशंस ऑफ एनी टाइप. एंड मोर ओवर हमारे क्लाइमेट के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा. अल्टीमेटली ग्लोबल ऑब्जर्वेशन सल्फर डाइऑक्साइड आर इंपॉर्टेंट फॉर द एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट रिसर्च. हमने अगर क्लाइमेट रिसर्च करनी है, हम देखना चाह रहे हैं कि वेदरिंग कंडीशन कैसी है, आया कि अपकमिंग वीक्स में इतनी गर्मी होगी या सर्दी होगी, तो वी आर मोर कॉन्शियस अबाउट द ऑब्जर्वेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड.
आप लोगों ने वैसे भी ऑब्जर्व किया होगा कि अब देखें जैसे कि कराची है, अगर हम लोग अभी यहाँ पे सियालकोट के मुकाबले में वहाँ पे गर्मी मतलब वहाँ पे जो है गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं। अगर यहाँ पे सर्दी है इस टाइम पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, तो वहाँ पे फिर भी इतनी ज़्यादा पीक लेवल पे सर्दी नहीं होती। इसकी क्या वजह है? द मेन रीज़न इज़ द नॉक्स एंड सॉक्स एंड द अदर pollutants that are present that are usually entered into our atmosphere and causes the increase in our temperature. यहाँ पे आप देख सकते हो कि टीएसपी जो है ना ड्यूरिंग द समर यहाँ पे बताया गया है कि कोयटा के अंदर टीएसपी टोटल सस्पेंडेड पार्टिकल्स कितने ज्यादा हैं। और यहाँ पे बाकी देखिए सेकंड नंबर पे आप लाहौर आ रहा है और आपको पता है कि लाहौर जो है वो एयर पोल्यूशन के लिहाज से यानी कि पोल्यूटेड एरियाज के लिहाज से पोल्यूटेड सिटीज के लिहाज से वर्ल्ड में नंबर 2 पे आया है कि द लाहौर द सिटी ऑफ द पाकिस्तान रैंकिंग इन नंबर सेकंड इन द एयर पोल्यूशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टीएसपी ज्यादा है इसकी। इसके अलावा दिस इज द PM10 दैट इज द पार्टिकुलेट मैटर, ये भी कोयटा का सबसे ज्यादा है। इसके अलावा आप इंडस्ट्रियलाइज एरियाज देख लो जितने भी हैं उधर भी पार्टिकुलेट मैटर जो है बहुत ज्यादा है। नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ सॉक्स, ये कहाँ से आते हैं? एक्चुअली द मिनेसोटा क्राइटेरिया पोल्यूटेंट इमिशन इन्वेंटरी एक्चुअली एजेंसी जो कि हमें बताती है कि सल्फर डाइऑक्साइड की इमिशन सोर्सेज क्या हैं। So first of all point sources actually these are localized sources होते हैं कि जहाँ से जो है कितना एग्जॉस्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स एंड रिफाइनरीज, यहाँ पे सबसे ज्यादा दीज आर लार्ज स्टेशनरी सोर्सेज जो कि हाई इमिशन करते हैं सॉक्स के। नॉन पॉइंट सोर्सेज दीज आर एक्चुअली स्मॉलर स्टेशनरी सोर्सेज जैसे कि ड्राई क्लीनर्स होते हैं, गैसोलीन सर्विस स्टेशन या वुड बर्निंग वगैरह। इसके अलावा जब एग्रीकल्चर टीलिंग करते हो, agriculture drilling is actually the mechanical preparation of the soil of our land फॉर द प्रॉपर एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस होते हैं, तो ये सारे भी या वाइल्ड फायर्स जो है इससे भी क्या होती है कि डिफरेंट तरह की कंबस्शन प्रोसेसेस होती हैं, उनमें सॉक्स जो है मेजर एलिमेंट होता है, मेजर प्लूटेंट होता है। ऑन रोड व्हीकल्स एज आई हैव ऑलरेडी टेल यू, ऑन रोड व्हीकल्स आर दोज दैट आर यूजुअली परमिटेड टू रन ऑन द व्हीकल्स, फॉर एग्जांपल आर यूजुअली परमिटेड टू रन ऑन द रोड्स। फॉर एग्जांपल बसेस हो गई, आपके पास ट्रक्स वगैरह हो गए जो कि आम तौर पर जो है ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग ऑन रोड यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास हाईवे स्ट्रीट्स एंड रोड्स वगैरह जो है ना ऐसी व्हीकल्स जो कि ऑपरेट की जाती हैं हाईवे स्ट्रीट्स और रोड्स के ऊपर। और नॉन रोड व्हीकल्स मैंने आपको पहले ही बताया है, इसके अंदर आपके पास पोर्टेबल इक्विपमेंट होता है दैट इज पावर्ड बाय द इंटरनल कंबस्टन इंजन। इसके अलावा आप अपने लॉन या गार्डन इक्विपमेंट जो यूज करते हो, रिक्रिएशनल इक्विपमेंट जो यूज कर रहे हो, या एयरक्राफ्ट एंड लोकोमोटिव्स वगैरह, ये जितने भी आप यूज करते हो दीज आर नॉन रोड सोर्सेज। अब यहाँ पे चलते हैं कि आप देखें कि इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज जो है 2009 का ये डाटा है जिसमें 53% यानी कि यू पीपल कैन सी कि सबसे ज्यादा सॉक्स कहाँ से इमिट हो रहे हैं इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज से। इसके अलावा 14% फ्यूल कंबस्टन से, 18% पॉइंट सोर्स से, 10% नॉन रोड से और बाकी 5% आता है। तो दीज आर एक्चुअली दिस डायग्राम एक्चुअली प्रेजेंट्स यू अबाउट द सोर्सेज ऑफ सॉक्स। नाउ द ऑक्सीडेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज द होमोजीनियस गैस फेस मैकेनिज्म। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीडेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज होमोजेनियस गैसेस मैकेनिज्म। एक्चुअली द होमोजेनियस गैसेस मैकेनिज्म इज एक्चुअली टाइप ऑफ द मैकेनिज्म दैट एग्जिस्ट ओनली इन अ सिंगल फेज। जब मैं आपको गैस फेज की बात करूं तो इसमें जितने भी कंपोनेंट्स होंगे दे आर प्रेजेंट इन द गैसियस फॉर्म, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द लिक्विड। अगर तो लिक्विड में होंगे ऑल द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म, बट नाउ माय टारगेट इज द गैस फेज मैकेनिज्म। तो जितने भी कंपोनेंट्स होंगे रिएक्टेंट द प्रोडक्ट्स दे आर प्रेजेंट इन द गैस फेज। तो हमारे पास यूजुअली क्या होता है कि जब स्काई बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन होता है एंड देयर इज अ लिटिल अमाउंट ऑफ द क्लाउड्स ये ना होने के बराबर, तो जो मेजर मैकेनिज्म प्रीडोमिनेंट मैकेनिज्म होता है वो होता है कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फ्यूरिक एसिड। मेन मकसद सल्फ्यूरिक एसिड बनाना, ठीक है। और वो दिस इज अ होमोजेनियस गैस रिएक्शन डिफरेंट तरह के स्टेप्स में होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड है। इस सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स है बट देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। आप देख सकते हो जब हम लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे फ्री हाइड्रोक्सिल रेडिकल के साथ, तो ये जो हाइड्रोक्सिल रेडिकल है इट कंबाइंड इट अटैचेस टू द सल्फर डाइऑक्साइड। ये देखिए यहाँ पे इसकी एडिशन हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब हमारे पास एक हमें ये जो है ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है क्योंकि इसके ऊपर अभी भी रेडिकल मौजूद है। अगले में क्या होगा कि हम लोगों ने क्या करना है कि जो सल्फर ये वाला जो हमारे पास रेडिकल आ गया इसको जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास जो है ना हाइड्रोक्सी पर रेडिकल्स बन जाएंगे। ठीक है,
इसको हम लोग हाइड्रोपेरोक्सी रेडिकल बोलते हैं, इट इज हाईली अनस्टेबल। और यहाँ पे जो हमारे पास एक ऑक्सीजन है वो यहाँ पे चला जाएगा और एज अ रिजल्ट सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देगा, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। ये दोनों रिएक्शन जो है ये वही है जो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किए थे कि सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोक्साइड रेडिकल के साथ बाइंड करेगा, HSO3 रेडिकल बनाएगा, और ये जो HSO3 रेडिकल है जो कि ये वाला मैंने बताया था, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड और हाइड्रोपेरोक्सी रेडिकल बना देगा। नाउ ये जो हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड आया है ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा, बट दिस सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन द गैसियस फॉर्म। हमें चाहिए था एक्वस फॉर्म के अंदर, तो हमने क्या किया, इस गैसियस फॉर्म को वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ दोबारा से रिएक्ट करवाया और एक्वस फॉर्म के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड हासिल कर लिया। तो दिस इज द मेन रिएक्शन कि यार हमें चाहिए था सल्फ्यूरिक एसिड, तो हम लोगों ने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड को जो है ना वो अटेन कर लिया। नाउ अगर हम लोग इस पूरे का सम ऑफ रिएक्शंस करेंगे तो क्या होगा, अगर तो हम लोगों ने फ्री हाइड्रोक्साइड रेडिकल जो है वो लिया है, तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड को फ्री हाइड्रोक्साइड रेडिकल के साथ हम लोग कंबाइन करवाएंगे विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मैनी वाटर, तो एज अ रिजल्ट आपको एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। बट व्हाट इफ अगर आप लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फ्री रेडिकल की फॉर्म में चाह रहे हो, तो फिर ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसको हम लोग हाइड्रोक्सिल रेडिकल कैटलाइज रिएक्शन भी कहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोक्सिल रेडिकल कैटलाइजेशन, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है विद द प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रिक ऑक्साइड इन द रेडिकल फॉर्म ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ द रेडिकल फॉर्म और सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। बट हमारा जो मेन कंसर्न था, ये जो मैंने आपको पीछे बताया था कि हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बनाना था, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दिस इज विदाउट द हाइड्रोक्साइड radical, and this is with the hydroxyl radical catalyzation. So these reactions are currently thought to constitute a main oxidation pathway for atmospheric sulfur dioxide. आप जितनी भी सल्फर डाइऑक्साइड आ रही है आप उसकी ऑक्सीडेशन करवाते हो और आप एट द एंड जो है ना वो सल्फ्यूरिक एसिड लेते हो, जो कि एज एन एसिड रेन जो है हमारे दोबारा से अर्थ पे आ जाता है। नाउ व्हाट इज एसिड रेन? Any rain that has a pH of 4 that is acidic in nature is known as the acid rain. Actually होता क्या है कि जो एसिड रेन है इसमें हाइड्रोजन आयंस बहुत ज्यादा होते हैं और आप पेपर आप समझ सकते हो कि अगर हाइड्रोजन आयंस ज्यादा हैं तो पीएच जो है इसकी लो होगी। अब क्या एसिड रेन हमारे लिए यूजफुल है? नॉट एट ऑल, एसिड रेन बिल्कुल यूजफुल नहीं है। इट हैज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एक्चुअली होता क्या है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर इमिट होते हैं, कैसे इमिट होते हैं? विद द हेल्प ऑफ द विंड एंड द एयर करंट्स, तो एसिड रेन बनना स्टार्ट हो जाती है। एसिड रेन बनती कैसे है? यहाँ पे आप देख सकते हो कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्ट करता है और वाटर भी मौजूद होता है, एज अ रिजल्ट रिएक्शन करवाते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। इसी तरह जो नाइट्रिक ऑक्साइड है जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, जैसे ही वो इमिट होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, नाइट्रिक एसिड बनता है। अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड है ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, ये दोबारा से जमीन पर आते हैं इन द फॉर्म ऑफ द एसिड रेन और आके डिफरेंट तरह के ड्रास्टिक इफेक्ट्स जो है हमारी बिल्डिंग्स, हमारी जमीन के ऊपर, हमारी डिफरेंट एक्वाटिक लाइफ के ऊपर जो है ना इफेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है मैंने यहाँ पे ये सारा जो टेक्स्ट है आपको इस डायग्राम की मौजूदगी में बता दिया था। अब मेजर सोर्सेज सॉक्स एंड नॉक्स क्या हैं ये हम देखेंगे और ये किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली जो मेजर सोर्सेज है सॉक्स एंड नॉक्स के बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, हम लोग फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग करें सो डैट कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकें, क्योंकि हमें पता है कि 2/3 ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है, 1/4 ऑफ नॉक्स जो है जो भी एटमॉस्फेयर वो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर से आ रहा है। इसके अलावा हम लोग व्हीकल्स एंड हैवी इक्विपमेंट्स यूज करें उसमें से भी इमिशन हो रही है सॉक्स एंड नॉक्स की, जो कि इनडायरेक्टली बल्कि डायरेक्टली जाके एसिड रेन कास्ट कर रहा है। इसके अलावा जितनी भी ऑयल रिफाइनरीज एंड अदर इंडस्ट्रीज जो कि पॉइंट सोर्सेज के अंदर आ रही हैं, दे प्ले अ वेरी मेजर role in the formation of the SOx and NOx, and then these SOx and NOx play their important role in the formation of the acid rain, and then this acid rain falls into our earth और यहाँ पे drastic effects जो है हमारी aquatic life खराब हो जाती है, हमारे buildings के पेंट खराब हो जाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा हमारे जो है ना क्लाइमेट को और हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं बिल्डिंग्स के उनको अफेक्ट करती है। नाउ सारी बातें पढ़ ली, नॉक्स पढ़ लिया, सॉक्स पढ़ लिया, कैसे एसिड रेन में है। अब क्योंकि बार बार एक बात रिपीट कर रही हूं मैं
कि दे आर वेरी hazardous फॉर द ह्यूमन हेल्थ, बट हाउ दे अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ, लेट डिस्कवर इट। हेल्थ इश्यूज बाय द नॉक्स। एक्चुअली होता क्या है, नॉक्स में क्या होता है कि जो हमारे रेस्पिरेटरी कंडीशंस होती हैं वो प्रॉपरली, यानी कि आप कह सकते हो कि रेस्पिरेटरी कंडीशन बहुत बुरी तरह से जो है ना अफेक्टेड होती हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी एक बंदा है, एक पर्सन है जो नॉक्स वाले एरिया पे या ऐसे एरिया पे काम कर रहा है, लाइक रिफाइनरीज में काम कर रहा है जहाँ पे एमिशन बहुत ज्यादा है, तो उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, एयरवेज की, जीआई की ट्रैक्ट की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और एक इंसान के जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं वो लंग्स होते हैं। लंग्स के अंदर एल्विलाई होते हैं। एल्विलाई, यू पीपल नाउ कि एल्विलाई इज इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज। जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो रैपिडली आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डैमेज करेगा, इन्फ्लेमेशन काज हो जाएगी और ब्रोंकाइटिस वगैरह की कंडीशंस हो जाएंगी। इसके अलावा पल्मोनरी एडीमा हो सकता है। पल्मोनरी एडीमा इज एक्चुअली, पल्मोनरी एडीमा के अंदर एक्सेस फ्लूइड आपके लंग्स में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा मोर हार्ट इफेक्ट्स फॉर लॉन्गर और हाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, आपके हार्ट को बहुत ज्यादा मसला हो सकता है, आपके हार्ट पे डायरेक्ट इफेक्ट कर सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ले रहे हो, आपको लंग इन्फेक्शन हो सकता है, आपके लंग के जो जितने भी फंक्शंस हैं वो खराब हो सकते हैं, आपकी रेस्पिरेटरी कंडीशंस खराब हो सकती हैं, मोर ओवर यू आर मोर ससेप्टेबल टू एलर्जेंस, आपको आप हाइपर सेंसिटिविटी की तरफ जा सकते हो। इसके अलावा जितने भी नॉक्स हैं जो कि आपको पता है कि ओजोन बना रहे हैं ट्रोपोस्फियर के अंदर, और दैट ओजोन इज नॉट हेल्पफुल फॉर द ह्यूमन हेल्थ, वो ह्यूमंस की हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करें। यू पीपल कैन इजीली इमेजिन कि देखें, अगर हमारे लंग्स खराब हो जाएंगे, आपका ब्रीथिंग सिस्टम खराब है, यू कांट इनहेल एक्सेल द गैसेस, तो आपका पूरे का पूरा प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग खराब हो जाएगी। इसके अलावा हेल्थ इश्यूज क्रिएटेड बाय द सॉक्स। अब सॉक्स जो है, सल्फर ऑक्साइड्स जो है, ये किस तरह से ह्यूमंस को अफेक्ट कर रहे हैं, ये आपकी स्किन को, आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन आपको पता है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होती है, लाइक नोज, थ्रोट एंड लंग्स, यहाँ पे जाके जो है ना इसकी हायर कंसंट्रेशन जो है आपकी इन जो मेम्ब्रेन्स है इनको अफेक्ट करेगी। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा एक फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हो, आपका बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये क्या करेगी, इन्फ्लामेशन और इरिटेशन कर देगी। यूजली जब आप फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा कर रहे हो, heavy physical activities कर रहे हो, तो high concentration sulfur dioxide can lead to inflammation and the irritation of the respiratory system. Now you people can imagine कि कितना ज्यादा hazardous and lethal effects है इन NOx and SOx का, लेकिन फिर भी हम as a human, because we want technology, we want new and advanced things, we are continuously adding the NOx and SOx in the troposphere, and that troposphere continuously form the tropospheric ozone, and that ozone has a bad effect on our human health. Now, अब इतना कुछ हो गया है, नॉक्स ऑक्स की हमारे हेल्थ पे इतने ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं, तो क्या हम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर सकते? ऑब्वियसली कंट्रोल कर सकते हैं। सो देयर आर सम कंट्रोलिंग मेथड्स फॉर द नॉक्स एंड सॉक्स। सबसे पहले नॉक्स कंट्रोल मेथड्स पढ़ लेते हैं। ह्यूमिड एयर मेथड। ह्यूमिड एयर मेथड इज़ एक्चुअली अ मैकेनिज़्म, इज़ एक्चुअली अ मेथड दैट इज़ यूज्ड टू ह्यूमिडिफाई। इसमें आपको ह्यूमिड वर्ड से ही पता चल रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, एयर को ह्यूमिड, यानी कि इसमें हम लोग इसका टेम्परेचर जो है वो कम कर देते हैं, सो दैट जब टेम्परेचर कम करेंगे तो एग्जॉस्शन जो एमिशन है वो कम से कम होगी और नॉक्स की एमिशन इतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी। एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, नाम सजेस्ट कर रहा है, रिसर्कुलेशन का मतलब है रिसर्कुलेशन ऑफ द गैसेस, गैसेस की रिसर्कुलेशन होगी। ये इससे क्या हेल्पफुल मिलेगी हमें, हेल्प ये मिलेगी कि दोबारा से टेम्परेचर जो है, हम लोग रिसर्कुलेशन इसलिए करते हैं कि जो दो एलिमेंट्स होते हैं इसमें, एक्सेस ऑफ द एक्सेस टेम्परेचर जो होता है, इसके अलावा जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं लाइक जो कि इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, वो इसमें दोबारा से ज़्यादा सर्कुलेशन करते हैं ताकि टेम्परेचर कम हो सके। टू स्टेट ट्यूबोचार्जर, ट्यूबोचार्जर इज एक्चुअली टरबाइन ड्राइवन डिवाइस होती है जो कि इंजन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। टू स्टेट टर्बोचार्जर इट्स वेरी हेल्पफुल टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ द नॉक्स। मोर ओवर वाटर इंजेक्शन एंड वाटर इमल्जन। वाटर इंजेक्शन का मतलब है वाटर को हम लोग इंजेक्ट करते हैं, और वाटर इमल्जन का मतलब है कि वाटर इज ब्लेंडेड विद द फ्यूल टू रिड्यूस द टेम्परेचर। इंजन कंपोनेंट मॉडिफिकेशन, एक्चुअली ये जो चार तरीके मैंने आपको बताए हैं, देज आर यूज टू रिड्यूस द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा, यू पीपल कैन इजीली अंडरस्टैंड कि भाई टेम्परेचर कम हो गया है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि इमिशन जो है वो कम हो, जो नॉक्स की इमिशन है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। बट
क्यों ना हम कोई एक ऐसा कंपोनेंट, कोई एक ऐसा इंजन कंपोनेंट बना दें, क्योंकि ये तो ऐसे थे कि इनसे हम लोग हेल्प ले सकते हैं। इससे हमारा जो इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होती है, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर कॉस्ट भी लग जाती है। क्यों ना हम एक ऐसा इंजन बनाएँ, कोई ऐसा कंपोनेंट बनाएँ जो कि रिडक्शन को बिल्कुल ही कम कर दे और हमें बाकी जो मेथड्स उनको यूज़ ना करना पड़े। एक्चुअली इंजन कंपोनेंट मॉडिफिकेशन इसमें कुछ ऐसे इंजन्स बनाए जाते हैं कि जिसमें हम नॉक्स की इमिशन को कम से कम किया जा सके। टोटली तो हम एलिमिनेशन गैप नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉपर्ली ऑटोमोबाइल्स चल रही हैं, जो रिफाइनरीज है वो रन हो रही हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हो रहे हैं। लेकिन इंजन कंपोनेंट मॉडिफिकेशन इतना होगा कि हम कम से कम एक ऐसा मैकेनिज्म यूज करेंगे जिसमें रिडक्शन कम से कम हो और हमें जो सेकेंडरी मेजर्स हैं उनको यूज ना करना पड़े। रिसेंटली ग्रीन अल्ट्रा लॉन्ग स्ट्रॉन्ग इंजन जो है वो यूज किया जाता है फॉर द रिडक्शन ऑफ द नॉक्स। सो दीज आर द मेथड दैट वी यूज टू कंट्रोल द नॉक्स। मोर ओवर सॉक्स के कंट्रोल मेथड थोड़े से अलग हैं। इसमें हमें चाहिए कोई ऐसे फ्यूल यूज करें जिसमें कम से कम सल्फर हो। मोर ओवर एग्जॉस्ट गैस स्क्रबर टेक्नोलॉजी जो है उसको यूज करें। स्क्रबर्स क्या है? दीज आर एक्चुअली द डिवाइसेस दैट इज यूज्ड टू रिमूव पर्टिकुलर मैटर। पर्टिकुलरली जब मैं अब बात कर रही हूँ सल्फर की, तो स्क्रबर एग्जॉस्ट गैस स्क्रबर टेक्नोलॉजी दे आर एक्चुअली यूज्ड टू रिमूव द सल्फर कंटेंट्स फ्रॉम अ pollutant। फॉर एग्जांपल, हम इसमें क्या होता है कि जो ड्राई एयर आ रही होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि थ्रू द हीट एक्सचेंजर जो वाटर आ रहा होता है उन दोनों को मिक्सअप किया जाता है और फिर स्क्रबर जो है वो हेल्पफुल होता है कि हम लोग जो जितना भी पार्टिकुलेट मैटर है उसको रिमूव कर सकें। फॉर एग्जांपल सल्फर है तो सल्फर को ज्यादा नहीं तो कम से कम हम उसको क्या करें कि इतने लेवल पे ले जाएं कि उसकी जो जब emission हो तो दैट वुडंट बी प्रूफ हार्मफुल फॉर द ह्यूमन हेल्थ। एंड एट द एंड डीसल्फ्यूराइजेशन, द फ्यूल डीसल्फ्यूराइजेशन का मतलब होता है कि डीसल्फ्यूराइजेशन इज एक्चुअली अ केमिकल प्रोसेस दैट इज यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ द सल्फर। तो ये जो मैकेनिज्म्स है हम इनको यूज कर सकते हैं फॉर द कंट्रोल एज अ कंट्रोलिंग मेथड, सो दैट कि हम अपनी ह्यूमन हेल्थ को मेंटेन रख सकें। और ओवरऑल ये तो नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल ही इमिशन खत्म हो सकती है। इमिशन तो एज सच वैसे ही रहती है, लेकिन अगर हम इन मेथड्स को यूज कर ले तो हम उनको कम से कम जो है उनकी उनकी जो इमिशन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर द रेफरेंसेस एंड थैंक यू वेरी मच।